Namaskar friends, myself is Arun N. Gupta, astrologer, numerologist and Mahavastu expert. Today I will talk about Pitra Paksh, Pitra Dosh, and I will try to bring in the flavors from all the occult science field I am attached with, like Mahavastu, Vastu, and of course astrology. Definitely, and I always go back to my histories, my mythologies of the country. When I say my mythology, mythologies of my country, which will talk more about the culture, the lineage we are carrying. So, without delaying much, I would like to start with the dates of this year, 2021. It is starting from 20th of September, Monday, on the full moon day. As usual, it starts on the full moon day and it continues till Amavasya, which is falling on 6th of October. इस समय हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंडिया में कभी कहीं पे श्राद्ध पीरियड बोला जाता है और कहीं पे तर्पण बोला जाता है, बट द रिचुअल, द साइकोलॉजी और हमारा कल्चर मानना ये है कि ये टाइम होता है साल का जिस समय हमारा पितरों, मींस हमारा एंसेस्टर्स हु हैव ऑलरेडी लेफ्ट अस from this earth will come back and keep and watch on us and expect something from us. So this is the kind of belief which we have, and we Hindus also believe in rebirth, in multiple lives. So all these are interlinked with each other. Definitely, before getting into the integrities or little more detailing about it, I would like to give you a very interesting story. Definitely, ये महावीर कर्णा का स्टोरी है. कहीं पे एक कथा में है कि महावीर कर्णा was also known as दाता कर्णा. He has always been giving to the mankind. उसने बहुत दान ध्यान किया है. But when he went to heaven after his death, he was said that तुमने दान तो बहुत किए हैं लोगों को, लेकिन तुमने अपने पितरों के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ कभी नहीं किया. And that is why he was again sent to this earth. And this is the 15 days he was given a chance to stay on earth and do something for his ancestors, जिनके बाद उनको मोक्ष प्राप्ति हुआ है. So this is the kind of mythological story which brings more interest and context to our belief system. और एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि हर जगह में पितृपक्ष और पितृदोष, इट गोज हैंड इन ग्लव्स, यू नो, लाइक पितृपक्ष में अगर आप ठीक से एंसेस्टर्स को खुश नहीं करोगे तो पितृदोष लग जाएंगे. तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है. सो इंडिया, एज आई सेड, and I always do say that it is a country of diversities, right? And we respect each and every katha, each and every belief coming from the different nooks and corners of the country. So coming to few of them, let me get into that. The pitra का जो पीरियड होता है, ये श्राद्ध पीरियड भी कहा जाता है. हमारा मानना है जो पितरों हमें छोड़ के चले गए हैं, they will again come to us and expect us to kind of treat them well, उनको खाना दे, उनको पानी दे. These are the things they will expect, and they would like to see us, and if they are pleased, they will leave blessings for them with us. And नहीं करेंगे तो पितृदोष हो जाता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग बिलीव हो जाता है. पितृदोष हमने भी as astrologers, when we see that in different कुंडली it comes in different forms. So पितरों पहले हम इसको तोड़ते हैं, पितरों और दोष. तो पितृपक्ष के बारे में मैं बाद में आता हूँ. पितृदोष पहले, क्योंकि डर एक चीज है हमारा यहाँ पे डाला गया है. और नेगेटिवली भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक जमाना था जहाँ पे इतना स्प्रेड ऑफ नॉलेज वाज नॉट पॉसिबल, सो डर से लोग मानने लगता था. बट ब्यूटी हम देखते हैं. पितृदोष क्या है? पितरों कौन है? पितरों मीन्स योर पेरेंट्स एंड देयर फोरफादर्स एंड लाइक दैट, सो ऑन सो फोर्थ. सो यहाँ पे भी डिबेट है कितना जनरेशन तक बैकअप जा सकते हो. सो कमिंग टू द शॉर्ट, पितृ हमारा यहाँ पे सूर्य यानी पिता और चंद्रा यानी चंद्रमा यानी हमारे माँ. तो माता पिता दोनों जन को लिया जाता है फॉर कंसिडरिंग पितृदोष. तो जब हम कुंडली में कोई एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं, वो माता, द पोजिशनिंग ऑफ सन, द पोजिशनिंग ऑफ मून एंड द दोष शब्द जहाँ पे ऐड होता है, हम कहीं ना कहीं से शनिदेव को जोड़ते हैं. सो ये तीन मुख्य प्लैनेट होते हैं. हाँ, पितृदोष का अलग भी
planets consider किया जाता है, but the main 3 planets which we need to concentrate is the positioning of Sun, Moon, and and Saturn. So यहाँ पे पितृ दोष, अभी बहुत लोगों का ये लगता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स. तो पितृ दोष मेरे को है या नहीं है? सो देयर आर सम इजी वेज टू अंडरस्टैंड. सबको तो एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है, दो हमारा ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग, इट इज लाइक ए जीपीआरएस, एवरीवन शुड कैरी दैट काइंड ऑफ नॉलेज विद देम टू हैव अ बेटर लाइफ. वो अलग बात हो जाते हैं. लेकिन आपका पास आपका कुंडली में, आपका लाइफ में पितृदोष है या नहीं, उनके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी इमीडिएटली जानने का दरकार नहीं है. वी विल ट्राई टू डिस्कस फ्यू स्मॉल ट्रिक्स टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड. एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो वास्तु के हिसाब से हम देखते हैं, घर की एंट्रेंस में, जहां पे आप घर में एंट्री कर रहे हो, वहां पे अगर स्टैग्नेंट वाटर जमा हो जाता है बार बार, तो इट इज एन इंडिकेशन कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पितृदोष इन योर चार्ट. तो करना क्या है? ऑफ कोर्स क्लीन ही करना है. दैट इज वन. Then you will see there will be cracks on the walls, there will be cracks on the roof. All these are also cracks on the floor. These are also considered as symptoms to say that you have pitradosh. Then you will have sudden financial loss. अब बंदा सब कुछ अच्छा कर रहा है, बहुत टॉप में परफॉर्म कर रहा है, बट सडनली उनका सब कुछ गवा देते हैं. ये भी जो सडन जो है, जिसके कोई रीजनिंग नहीं मिल पाता है, इनके लिए सडन फाइनेंशियल लॉस के लिए भी हम पितृदोष को समझाते हैं कि ये पितृदोष का लिए ही होता है. बहुत सारा फैमिलीज में ऐसा भी दिखा जाता है, देयर विल बी इमैच्योर डेथ ऑफ बेबीज और प्रीमैच्योर डेथ. ये भी पितृदोष का ही कारण है. तो घर, जो हम जब एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, जो एस्ट्रोलॉजी का चर्चा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए तो ये है 4, 5, 9, दीज आर द हाउसेस फ्रॉम वेयर वी सी पितृदोष. एक सिंपल सा उपाय कहीं पे जो हम बताएंगे कि अगर पितृदोष, इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपका घर में दिख रहा है, या पीपल का पेड़ भी घर में आता है, सो डेफिनेटली दीज आर द सिम्टम्स दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग पितृदोष. लेकिन दोस्त, घबराना नहीं है. सो व्हाट वी विल डू इन दिस केस इज, अगर आपको ये सिम्टम्स इसमें से कोई भी दिखता है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी विल डू is every evening we'll try to light a diya and just do our prayers. So that's the basic thing which we need to do. And the other thing which you also can do is, जहाँ पे पीपल का पेड़ है, घर में भी कभी कभी पीपल का पेड़ आ जाता है, I think we have to remove that, but we should never be throwing them out. उसको पीपल का पेड़ को उठा के उसको एक गमला यानी पॉट में लगा के, you have to keep it in your house. You should not uproot it and throw it away. So people is very important in terms of the pitros. इन पीपल का पेड़ को बहुत जगह में हमारा lineage के साथ भी जुड़ा गया है. So in terms of the other things wherein we ये तो हमने बात कर लिए हैं एस्ट्रोलॉजी की, थोड़ा सा वास्तु की. उसके बाद हमें ये जानना है कि ये पितृपक्ष जो चालू होता है, ये भाद्रपद नक्षत्र में चालू होता है. और भाद्रपद नक्षत्र को भी देखा जाए, उनका जो सिंबल होता है, एवरी नक्षत्र हैज देयर ओन डायग्राम, ओन सिंबल. ये नक्षत्र का सिंबल भी ये है कि जो फ्यूनरल का जो पॉट होता है, उनके पहिया जैसा होता है. पूर्व भाद्रपद इज द फ्रंट वन एंड द उत्तर भाद्रपद इज द रियर वन. सो ऐसे सिंबल है. So this is the time, this नक्षत्र हमें क्या बताता है, सिंबल हमें क्या बताता है, ऋषियों ने हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं. We have to understand this is the time wherein we have to kind of go back and think about the past, think about our roots. We should never be uprooted. जो बंदा अपने अपने से जुड़े हुए नहीं होता है, जो बंदा अपना रूट्स को टोटली खुद को अपरूट कर देता है, he will never have stability in life. So to have stability in life, you should also have the lineage with you. और चाहो ना चाहो, इंटरेस्टिंग बात तो यही है, एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि ये जो एज है, when you are around 42 onwards, ये टाइम है जहाँ पे केतु मैच्योर करता है. इट इज द पिक पीरियड. और उसी समय केतु हमारा लिनिएज
में हमको ले जाता है, हमारा पुराना, इट इज लाइक अ हार्ड डिस्क विच वी आर कैरिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मजे की बात देखो आप, ये एस्ट्रोलॉजी मानो ना मानो, भगवान मानो ना मानो, एवरी इंडिविजुअल, एवरी ईच वन ऑफ अस, वी विल टेंड टू बिकम लाइक आवर अर्लियर जनरेशन। अगर मैं 42 का बाद 42 का बाद आई विल ट्राई टू रेप्लिकेट सर्टेन थिंग्स व्हिच माय फादर यूज्ड टू डू, और मेरे पापा ने भी वही करके गए हैं। तो ऐसा ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन वी विल ट्राई। इसको आप साइंस में डीएनए भी बोल सकते हो, हम अपना लैंग्वेज में, एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में हम तो इसको केतु से लिंक कर देते हैं। सो इवन इफ यू थिंक रैशनली और साइंटिफिकली, ये भी है कि सन का जो उत्तरायण दक्षिणायन होता है, दिस इज द टाइम व्हेन द भूलोक एंड द पितृलोक कम्स क्लोजर टू ईच अदर। अभी इसमें दिस इज द बैकग्राउंड, एंड व्हाट वी डू इज नॉर्मली वी डू नॉट डू एनी ऑस्पिशियस थिंग इन दिस पीरियड। इसको इनऑस्पिशियस बोला गया है। इनऑस्पिशियस बोलने के पीछे, इज इट रियली इनऑस्पिशियस? देयर आर डिफरेंस ऑफ। मेरा मानना ये नहीं है कि इनऑस्पिशियस है, क्योंकि ये पूर्वजों जब हमारे साथ आएंगे, हमारे आसपास रहेंगे, हम पे वॉच करेंगे, आई कैनॉट कंसिडर कि दे आर इनऑस्पिशियस इन द एनवायरनमेंट, कैन नेवर बी। बट वी शुड काइंड ऑफ रिफ्रेन फ्रॉम द अदर सेलिब्रेशंस ऑफ लाइफ। इस समय इसीलिए शादी या कुछ भी अच्छा काम, कुछ भी सेलिब्रेशंस, हम नया घर खरीदना, नया गाड़ी खरीदना, ये सब नहीं करते हैं, बिकॉज इफ यू रिमेन बिजी ओनली अबाउट द luxuries of life, only about the celebrations of life, we also need to kind of sit back sometime and look back and get rooted to our culture. So there is a balance required, and ये मजे की बात है कि पूरा साल में 15 दिन का टाइम हमें दिया गया है, जहाँ पे we have to just look back and see where from we have come, what is our lineage। और बाकी साल का जो टाइम है, वी आर ऑलवेज रनिंग बिहाइंड समथिंग, राइट। हम कोई जॉब मिल गया तो बेटर जॉब चाहिए, बेटर जॉब मिल गया तो उससे बेटर चाहिए, प्रमोशंस चाहिए, हमको अच्छे से अच्छा घर चाहिए, और से और ज्यादा मार्क्स चाहिए। एक जमाने में बच्चे 60% लाते थे, अभी 80% भी कम लगता है, 90% भी कम लगने लगा है। सो देयर इज नो एंड टू इट, बट वी ऑल्सो नीड टू लुक बैक सम टाइम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ बैलेंस इन आवर लाइफ। यहीं पे दोस्तों, जो एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट्स है, राहु केतु का खेल है, मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है, इट इज नॉट ओनली फॉर एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स, सबके लिए है। तो इसको मैं जनरलाइज रखने का कोशिश कर रहा हूँ। सो इट इज लाइक ए बैलेंस शीट विच काइंड ऑफ कॉस्मोस कीप्स अ बैलेंस शीट। ओके, उनके पास सब अकाउंट्स, कायनात के पास, प्रकृति के पास, ब्रह्मांड के पास, कॉस्मोस के पास, विच एवर लैंग्वेज यू वांट टू टेक, उनके पास सब हिसाब है। और ये लाइफ आफ्टर लाइफ ये कैरी फॉरवर्ड होता है, ये हमारा मानना है। तो हमें कोई अच्छा काम इसीलिए नहीं करना है। देयर आर मेनी डिबेट्स ऑन द इकोनॉमिस्ट एज वेल, दैट आप 15 दिन के लिए अपने इकोनॉमी को काइंड ऑफ स्टैग्नेंट कर रहे हो। मेरा तो मानना ये है, अगर इफ यू आर पेनलाइजिंग अस और क्वेश्चनिंग आवर बिलीफ सिस्टम, सेइंग दैट तुम्हारा ये बिलीफ का कारण 15 दिन के लिए तुम अच्छा काम नहीं करोगे, तुम घर खरीदोगे नहीं, तुम सोना नहीं खरीदोगे, तुम गाड़ी नहीं खरीदोगे, तुम इकोनॉमी को स्टॉल कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ, साल में 52 दिन तो तुम संडे मनाते हो ना, हम तो 15 दिन की बात कर रहे हैं। उसको किसने बताया? वेयर फ्रॉम दैट लॉ कैम? तो वहां पे भी तो 52 दिन संडे का कोई सेलिंग ट्रांजैक्शन, बाइंग ट्रांजैक्शन यूजुअली होता नहीं है। तो उसमें अगर इकोनॉमी नहीं स्टॉल होता है, तो इसमें भी नहीं होता है। सो डेफिनेटली अगर होता भी है, देन अगेन इट टेक्स अ बूस्ट, बिकॉज दिस इज द टाइम wherein you get rooted, and it will give you strength to do better. So your buying capacity, your capacity to bring more energy into your work, everything will excel after this period. It is like a cycle, right? So that is how, because आज सबको लेके चलना है। अभी स्थान काल पत्र के अनुसार सबको लेके चलना है। यहाँ पे इकोनॉमिस्ट है, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपको मेडिकल साइंस वाले हैं, यहाँ पे अदर साइंसेस है, ओकल्ट साइंस वाले हम तो है ही। सो वी हैव टू थिंक होलिस्टिकली अबाउट वेयर आर वी बैलेंसिंग आवर लाइफ। करना क्या है, विच इज वेरी सिंपल। जिनको तर्पण करना आता है, कोई पंडित को बुला के तर्पण करो, पिंड दान करो, वो तो डेफिनेटली है ही। सो एवरीवन हु फॉलोज इट, दे हैव देयर पंडित हु विल गाइड देम। और सिंपल से सिंपल चीज है कि हमको जलदान करना है, वहां पे तिल रख के करना है। एंड देयर आर वेरी ब्यूटीफुल वेज विच हैव बीन डिफाइंड, दैट पितृ जब आते हैं तब कौन सा प्राणी का अंदर से आता है, वी डोंट नो।
So 3 birds and animals you have to kind of don't उनको भगाओ मत अगर कोई आए, क्योंकि आपको मानना ये है, देखो ये ब्यूटी है, इससे हमारा ओवरऑल ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ लाइफ, आपका इंसान का जो क्वालिटी है, इंसानियत जिसको हम बोलते हैं, वो भी कितना इम्प्रूव होता है। जहाँ पे आप घर पे आए, कोई भी एक पक्षी हो चाहे कोई एनिमल हो, उसको आप खाना दे रहे हो, उसको आप नहीं भगा रहे हो, आप बाहर पानी रखे हो, ये गर्मी का टाइम भी है, बाहर पानी रखते हो, तो कोई भी बर्ड्स भी, चिड़िया भी आते हैं उड़ते हुए, पानी पी के जाता है। आपका मानना चाहे जो भी है कि आपका कोई पितृज आया था कि कोई आया था, बट डेफिनेटली इट इज हेल्पिंग सम लाइफ, उनमें भी तो प्राण है। तो मेनली हमारे को वी बिलीव दैट crows, cows and dogs are need to be fed in this period, और इससे ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है। हमारा को किसी को असम्मान वैसा भी नहीं करना है, and this is the time wherein we have to be little more conscious to maintain that. So पितृपक्ष में ये चीज हम जो भी हम बताए हैं, ये सिंपल चीज हम सभी कर सकते हैं, एंड आई विश दैट ऑल ऑफ यू शुड फॉलो इट। हाँ, ये एक सवाल बहुत सारे लोग करते हैं आजकल, क्योंकि ये क्या ओनली बॉयज कैन डू इट? हमारा धर्म में यही कहा गया है ओनली बॉयज विल डू इट, बट आई पर्सनली फील थानकल पत्र अगेन हिसाब से इवन गर्ल्स कैन डू इट। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। एवरीवन कैन रिमेंबर, एवरीवन नीड्स टू रिमेंबर देयर lineage and needs to stay connected and do something good for the for their life। और हमारा लाइफ को बैलेंस करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको पीछे का भी लेके संभालना है और फिर आगे बढ़ना है। और मैंने जैसे कहा, आई विल एंड द वीडियो विद दैट। अब चाहो ना चाहो, वॉच अराउंड योर सेल्फ, वॉच योर सराउंडिंग्स। आफ्टर 40 you anyways you are tend to go back to your DNA or Ketu or your fathers and forefathers। सब तो आना ही आना है, you cannot stay away from that, so better embrace it and live with it। With this note, I would like to take pause for the day, and I wish that you all follow a very good ritual this period, and after this period we'll of course come back stronger and celebrate life। Okay, so from the side behalf of Mangalmay, I wish everyone a fruitful life। सबर जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन मंगलमय हो। Thank you, stay blessed, stay safe।